Hello student, today I am discussing the topic GNF in continuation of the contrast free grammar. In the previous lecture I have discussed the CNF, now it is GNF, Greibach normal form. A CFG in GNF if every production R of the form is of the form A tends to A alpha, where capital A belongs to variable, A belongs to terminal and alpha belongs to V ka star, that is closure or star of the variable. To make a grammar in GNF, we use lemma 6.1 of KLP Mishra. What this lemma says? It says it is useful for deleting a variable capital B appearing as the first symbol on the RHS of some production provided that no B productions has B as the first symbol on RHS. That I already explained. What are the B production and A production? So the symbol which are starting with the first letter is B. Say for example, A tends to B, C, A tends to B, A, like this. So these are some B productions. The A productions and the B production. In the B production means starting symbol is the B. We have to eliminate this. I have already discussed this. A tends to B gamma and B tends to beta I. So we have to get this form, that is A tends to beta I gamma. That is the required form in pumping lemma. How it is? See the example. Say A tends to A B A B, capital B A B. Capital B tends to small a, capital A, B, capital B, small a, A B. Now what happens? Now this is your B production. Provided that B appear as the first symbol on the right hand side of the A production. ये देखो A के बाद ये B पे B से स्टार्ट हो रहा है. तो जब B पे स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है कि इसको हमें डिलीट करना है ताकि ये हमारा लीमा 6.1 के फॉर्म में आ जाए. तो जो B प्रोडक्शन दिए गए हैं जिसमें कि पहला सिंबल किसी का भी B ना हो, पहला सिंबल किसी का भी B ना हो, तो उसको हम B प्रोडक्शन को यूज करते हुए हम अपने A प्रोडक्शन को इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे. A टेंड्स टू बीटा आई गामा. कैसे? A टेंड्स टू B A B. तो फॉर दिस B आई एम रिप्लेसिंग दिस 1 2 3 4. सो B टेंड्स टू, सी दिस, B टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A and then AB. B tends to small b capital B. B tends to small a and B tends to AB. So this AB is nothing but this AB and this capital B. These all are capital B. So for capital B I have replaced. This is the lemma 6.1. We have to know. Now in continuation of this, come to this lemma 6.2. Why this lemma I am discussing? Because in the GNF you have to use two lemma, that is 6.1 and 6.2 of KLP to get the production in the form A tends to A alpha. That is the required form of this of GNF. अब क्या करेंगे? इस लीमा को देखते हैं. This lemma is useful to eliminate A from the RHS of A tends to A alpha. जो प्रोडक्शन है, जो कि ए प्रोडक्शन है, जिसमें कि पहला सिंबल ए है, उसको हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है, ताकि हमारा जो पहला सिंबल हो वो किस फॉर्म में आ जाए? टर्मिनल्स के फॉर्म में आ जाए. कैसे? अगर कोई ग्रामर दी गई है, G tends to V sigma P and S be a CFG and the set of A production, जिसके कोई A productions है, A tends to A alpha 1, A alpha 2, like A alpha N. ये है हमारा A alpha N, beta 1, beta 2 up to beta S. See, beta is equal to do not start with A. ये जो बीटा के प्रोडक्शन है ये A से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं. जो सारे A से स्टार्ट है वो पहले लिखे हैं. उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, A tends to A alpha 1, A alpha 2 up to A alpha N and A tends to, उसको ब्रेक कर लिया वहां से, beta 1, beta 2, beta 3, beta S. इस तरह के प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं? नाउ वी टेक अनदर वेरिएबल, लेट जेड बी अ न्यू वेरिएबल. हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ये लीमा 6.2 के स्पेसिफिक है, एंड लेट इस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर को मॉडिफाई करते हैं. लेट G1 इज इक्वल टू V यूनियन Z कॉमा सिग्मा कॉमा P1 कॉमा S. अब जो ग्रामर थी हमारी, ये V की जगह हमारा क्या हो गया? V हमारा कन्वर्ट हो गया V यूनियन जेड में, ये एक नया सेट बन गया. और पी जो है वो
P1 के फॉर्म में आ गया। तो नए P1 के प्रोडक्शन कैसे होंगे लीमा 6.2 के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। नाउ P1 हैज प्रोडक्शंस which are as follow. The set of A production in P1, that is A tends to beta 1, beta 2, beta 3 up to beta S, will be write as A tends to beta 1 Z. सब में एक एक Z जोड़ देंगे जितने भी हमारे A प्रोडक्शंस हैं। A प्रोडक्शन का मतलब ये वाले जितने भी इस तरह से हमारे A प्रोडक्शंस हैं, जो भी हमारे, ये देखिए ये हमारे A प्रोडक्शंस हैं, ये हमारे A प्रोडक्शंस हैं, इनमें हमने जोड़ दिया। अब जो सेट ऑफ Z प्रोडक्शंस हैं हमारे, ये हमारे सेट ऑफ Z प्रोडक्शन है, ये दोनों हमारे A प्रोडक्शन है। इससे कंफ्यूज मत होना कि ये A वाला है तो इससे क्या हो गए, ये सारे के सारे हमारे A ही प्रोडक्शंस हैं। ये दोनों जो हैं A अल्फा 1 और बीटा 1, ये दोनों हमारे A प्रोडक्शन ही कहला रहे हैं। अब A प्रोडक्शंस में हमने A प्रोडक्शन में हमने Z जोड़ लेना है। उसके बाद जो हमारा Z वेरिएबल लिया था हमने P1 में, उसमें हमारे Z प्रोडक्शंस क्या हुए, Z टेंड्स टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा R, ये हमारे Z प्रोडक्शन है। Z प्रोडक्शन में ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा R ये कहां से आ गया, तो हम यहां चलते हैं। ये देखिए नाउ, ये देखिए यहाँ पे A टेंड्स टू अल्फा 1, तो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ठीक है, लाइक ये अल्फा n है। तो Z में हमने वो वाले टर्म लेने हैं अल्फा वाले, Z टेंड टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा R, so Z tends to alpha 1 Z and Z. So we have to modify the A production and Z production by lemma 6.2. Now in the next lecture we will discuss the one example how to solve this, and before that we will take one example of lemma 6.2 also. See this example very shortly, just I am explaining. Using lemma 6.2 for below example we convert the production into the 6.2. Using lemma 6.2 we are converting this. How it is, हमें एक ग्रामर गिवन दी गई है, A tends to A B D, A tends to B B D and B, A tends to C, A tends to A B and A D. ये हमें कोई ग्रामर दी गई है, इसको मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा 6.2 के फॉर्म में। 6.2 के फॉर्म में हम इसमें कैसे लिखेंगे, पहले हम ग्रामर को उस फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में लीमा 6.2 कहती है। A टेंड्स टू A अल्फा 1, A अल्फा 2, A अल्फा 3, A अल्फा R, A टेंड्स टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा S, लाइक दिस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A टेंड्स टू A अल्फा 1, A अल्फा 2 अप टू A अल्फा R, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 अप टू बीटा S, ठीक है। ये वैसे ही लिख दिया जैसे अभी हमने पहले लिखा था। नाउ अब हम लिखते हैं, इसमें हम कंपेयर करेंगे A टेंड्स टू A अल्फा 1, A टेंड्स टू A अल्फा 1 के फॉर्म में कौन सा वाला है हमारा, A टेंड्स टू A अल्फा 1 में ये वाला, A टेंड्स टू A B, A टेंड्स टू A B, तो A को छोड़ के अल्फा 1 क्या हो गया हमारा B, दैट इज ये अल्फा 1 हो गया। फिर देखो A टेंड्स टू A अल्फा 2, A टेंड्स टू A अल्फा 2 में हमारे पास क्या है, A टेंड्स टू AD, AD के लिए A हट गया, अल्फा 2 में क्या आ गया D, तो ये हमारा हो गया अल्फा 1 B और AD। नाउ अब बीटा 1 वाले, बीटा के फॉर्म में देख लो कौन से हमारे पहले 3 है, ये वाले, ये देखो ये वाले, ये हमारे बीटा के फॉर्म में है। कैसे, A टेंड्स टू बीटा 1, तो A टेंड्स टू ABD, सो दिस बीटा 1 में कितना आएगा, ये पूरा आएगा। A टेंड्स टू बीटा 2, सो ये होगा ABD, तो डेट इज बीटा 2 में B एंड D, एंड A टेंड्स टू बीटा 3 में A टेंड्स टू स्मॉल c एंड बीटा 3 में C आ गया। तो ये फिर से ध्यान से देख लो, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। नाउ न्यू प्रोडक्शन कौन से हो गए, तो हमारे न्यू प्रोडक्शन कौन से हो गए, A टेंड्स टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, सो A टेंड्स टू ये हमारे ये 3 है, 1 2 और ये 3। अब हम क्या करेंगे, Z इसमें वेरिएबल जोड़ लेंगे, तो A टेंड्स टू क्या हो जाएगा, बीटा 1 Z, बीटा 2 Z, बीटा 3 Z, तो A क्या बन गया, A टेंड्स टू ABD Z, BBD Z और CZ, ये हमारे मॉडिफाई हो गए A प्रोडक्शन। अब जो कि हमने Z भी लिया था इसमें, तो Z किसके साथ में जुड़ेगा हमारे, Z भी देख लो कैसे जुड़ेगा हमारा। Z टेंड्स टू क्या होता है, Z टेंड्स टू होता है अल्फा 1 और अल्फा 2, ये देखो ये दिया हुआ है, अल्फा 1 और अल्फा 2 दिया हुआ है, तो हम इसमें Z जोड़ लेते हैं, तो नाउ इट विल बिकम Z टेंड्स टू
B Z tends to D. अब Z tends to alpha 1 Z और alpha 2 Z, तो Z tends to BZ और DZ. ये मैंने एग्जाम्पल जो लिया वो लीमा 6.2 को एक्सप्लेन करने के लिए. इसके बाद हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन बाय यूजिंग लीमा 6.1 एंड 6.2.